Uh, so shall we start the session, sir? Yes, we can. Okay. So hi and hello everyone. Welcome to another session of Witty Wednesday. So today we have Mr. Dhananjay Bhatia with us, who has over 17 years of experience in financial services industry. He is a nationally acclaimed financial market trainer, a business strategist, a keynote speaker, a author, and an entrepreneur. He has conducted over 2,300 plus sessions on various topics across 24 states in India. So, without any further ado, let's welcome Mr. Dhananjay and can we get started with the session? Thank you, Chaitali ji, for the warm introduction. Hi, good afternoon, namaskar everyone. I hope I'm loud and clear. अगर मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है तो you can type C in the chat box. I'll just request participant, let's be super active on the chat box because I can't see your faces. The only way to connect with you is with the help of a chat box. तो अगर आप जितना एक्टिव रहेंगे चैट बॉक्स में उतनी हमको इजी होगी कनेक्ट करने में. थैंक यू सो मच आशीष जी, अभिषेक जी, कैलाश जी, अनुराग जी. ओके, वी हैव प्रणीता जी, वंडरफुल. सौमित्रा दास जी, लक्ष्मी, स्वामी जी, कीर्ति सिंह जी. ओके, ग्रेट, थैंक यू. ग्रेट. सो again I would like to thank team Bajaj Asset Management Company for this platform. I believe because of their support I'm there in this particular platform. तो आज ना हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं मुझे लगता है इट इज़ वेरी रेलिवेंट विद रेस्पेक्ट टू टुडेज सिनारियो. तो मेरा पहला सवाल आप सभी पार्टिसिपेंट से है बिकॉज आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट एंड बिट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरीवन इज हाउ मेनी इन्वेस्टर्स डू वी हैव राइट नाउ इन म्यूचुअल फंड्स. कितने लोगों ने अभी तक इंडिया में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है. I'll just request all the people, and the session will be in English, so it will be Hindi English combination. I'll just request participant, ये session हिंदी और इंग्लिश कॉम्बो में रहेगा. तो please bear with me because I have to address the entire crowd. तो my request to everyone is please respond to me in the chat box. Sir, अभी भारत में number of mutual fund investors कितने हैं? I'll just request. There is no right or wrong answer. I believe every answer is right. So I need the numbers. Maybe 5 crores, 10 crores, whatever it is. Can we have a number, please? Okay, कैलाश पांड्या जी कह रहे हैं, पदाया जी कह रहे हैं 10 crores. आशीष जी कह रहे हैं 5 crores. गोपाल दास जी कह रहे हैं 5 crores. Okay, we have wonderful numbers. I believe we are getting the number closer. I'll just give you a very interesting answer. The number of mutual fund investor in India is just 5.8 lakhs. If you want, write it down. It's a very shocking figure, but I'll just prove you why I'm making this sentence. The number of investors right now in mutual fund in India is just 5.8 lakhs. तो आप बोलेंगे सर फिर हमको ये 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ डेटा बताया जा रहा है. सर ये जो 5, 6, 7 करोड़, 8 करोड़ जो डेटा है ना सर, दिस पीपल आर नॉट इन्वेस्टर, दिस पीपल आर टेस्टर. सर इन्वेस्टर और टेस्टर में बहुत बड़ा फर्क है, इसको समझना बहुत जरूरी है इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड वेयर द इंडस्ट्री इज शेपिंग अप. चैताली जी, आप इन्वेस्टर किसको कहते हैं? आप इन्वेस्टर उसको कहते हैं जिसने अपने नेटवर्थ का एटलीस्ट 5 से 10% पैसा म्यूचुअल फंड में डाला है. जी. देयर इज अ क्लाइंट ऑफ माइन हु हैज अ नेटवर्थ ऑफ 10 करोड़ और उसने 2,000 का एसआईपी किया है. अब मैं कोई बात बताओ, उस 2,000 का एसआईपी अगर 20% रिटर्न भी दे देना उसके लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो जो डेटा दिखा रहा ना कि 5 करोड़, 6 करोड़, सर मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट टेस्टर. उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए पैसा डाला है. सीरियस मनी हैज नॉट येट कम टू दिस इंडस्ट्री. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So people question me, Dhananjay, what do you look at the future, whether the advisor will be there or not, what will happen to the market? And what I'm saying is, sir, please understand this business is yet to start in India. अभी म्यूचुअल फंड का बोलते हैं ना, this is the starting point of mutual fund. This is the starting point of asset management. अभी कुछ हुआ नहीं सर. This is just the beginning and that's very important. Let me ask you the second question. सर भारत में कितने लोग साल का 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं? How many people in India are earning more than 1 CR? Our population is more than 140 crores that we all are aware of. 140 करोड़ के ऊपर आबादी है. My question is how many people do you think in India are earning more than 1 crore? Can I have the answer in the chat box? There is rough guess. We are not going by कि आपने right दिया है कि wrong दिया है. Important is we want your participation so that we can have some figures based on that we can work on. I need numbers. I need number. I need how many people? The population of India is 140 crores. And how many people? I need numbers. 5 crore people, 50 lakhs people, 20 lakhs, whatever it is. Kirtis ji is saying 2 lakhs. Okay. Anurag ji is saying 2 crores. I need numbers because if you get numbers, then things are easy.
जैसे सुबीर भाई आपने कहा 10% है, तो 140 करोड़ का मतलब 14 करोड़ लोग, 14 करोड़ पीपल आर अर्निंग मोर देन वन. ओके, मयूर जी इज सेइंग 1 crore. ओके, I'll give you an interesting data. The number of people who are earning more than 1 CR in India as per IT returns. अब अनऑफिशियल की बात करेंगे, विल नॉट टॉक अबाउट दिस इन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज हमको लीगली अलाउड नहीं है. वी डोंट टॉक अबाउट पैरेलल इकोनॉमी, वी टॉक अबाउट डेटा विच इज एज पर ऑफिशियल साइट्स. द नंबर ऑफ पीपल, चैताली जी, जो भारत में 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं ना, इट इज 2.6 lakhs as per IT returns. It is only 2.6 lakhs. With a population of 140 crores, the number of people who are earning more than 1 CR is only 2.6 lakhs. It's And really a shocking number. that is not important. ये भी important नहीं है. इसमें important चीज क्या है पता है? ये 2.6 lakhs में 3,000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं. That is the most important part. Out of this 2.6 lakhs people, 3,000 are mutual fund distributors. And welcome to the world of financial market. That is the potential. आप बात करते हैं इंडस्ट्री की ताकत क्या है. जी. 3,000 लोग हम में से हैं जो उस 2.6 के पार्ट हैं. तो अगर ये बिजनेस में लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ पीपल आर आस्किंग कि व्हाट विल बी द ट्रेंड फ्यूचर एंड ऑल, आई बिलीव इट इज नॉट अ बिजनेस टू टॉक अबाउट कि क्या होगा. आई से इट्स गेट इनटू द वर्क मोड, गेट इनटू द माइंडसेट, गेट इनटू द बिलीव कि इस धंधे में बहुत अपॉर्चुनिटी है. वी आर जस्ट द बिगनिंग. लोग बात कर रहे हैं कि धनंजय भाई मार्केट क्या लग रहा है, रिटर्न नहीं बन रहा है. रिटर्न किसका नहीं बन रहा है? अब मैं भी लगो सवाल पूछते हैं ना, रिटर्न नहीं बन रहा है. मैंने बोला कि ये क्वेश्चन अपने आप में एक इलॉजिकल क्वेश्चन है टेक्निकली, बिकॉज सर आई एम श्योर जितने भी पार्टनर्स हैं अक्रॉस कंट्री जिसको मैं एड्रेस करता हूँ, चेताली जी, हम 1 साल के लिए इक्विटी बेचते नहीं है. आई एम श्योर वी डोंट सेल इक्विटी फॉर 1 ईयर. इक्विटी इज नॉट एन एसेट क्लास फॉर 1 ईयर, राइट? दैट वी आर Correct. ऑल क्लियर ऑफ. जी. अगर इक्विटी 1 साल के लिए बेचते नहीं है और रिटर्न 1 साल में नहीं बना है, तो ये तो लॉजिकल है ना सर. हम सब जानते हैं ना सर, मार्केट में ऊपर नीचे होता है. वी ऑल आर अवेयर. आई एम श्योर कि जितने भी पार्टिसिपेंट अटेंड कर रहे हैं, ये सबको पता है कि मार्केट में अगले साल रिटर्न कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, राइट? दिक्कत क्या है पता है चैताली जी? हम सब जानते तो हैं पर मानते नहीं है. यहाँ पर आदमी फंस जाता है. जानना और मानने में बहुत बड़ी फर्क हो जाती है. एक्सेप्टेंस एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे पहले यू गेट दैट एक्सेप्टेंस, राइट? अगर डिस्ट्रीब्यूटर पूछ रहा है कि सर 1 साल में पैसा नहीं बना है, दैट मीन्स देयर हैज टू बी अ रीवर्किंग दैट हैज टू बी डन. क्लाइंट पूछे तो बरोबर है. पार्टनर अगर पूछे ना कि सर क्या लग रहा है, मार्केट चलेगा कि नहीं चलेगा, दैट इज वेयर वी पुट अ क्वेश्चन मार्क. तो जब मैं कह रहा हूँ सर इन्वेस्टिंग इज जस्ट लाइक क्रॉसिंग अ ट्रैफिक सिग्नल, अभी सर आपका क्लाइंट का तरफ से कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से बात करते हैं, हाउ डू यू सेट अप द टोन, व्हाट इज योर एनालॉजी, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, व्हाट इज योर एनेक्डोट्स, व्हाट आर द एग्जांपल दैट यू यूज विल बिकम वेरी रेलिवेंट. एंड जितने भी यहाँ बैठे हैं ना सर, प्लीज अंडरस्टैंड, हमको ना म्यूचुअल फंड बेचने के लिए पैसा नहीं मिलता है. बहुत जन लोग मुझे कहते हैं कि सर धनंजय भाई मेरे को म्यूचुअल फंड बेचने के लिए पैसा मिलता है. आंसर इज नो. सर म्यूचुअल फंड तो आधे घंटे का सिलेबस है. चेताली जी, म्यूचुअल फंड इज अ 30 मिनट सिलेबस, दैट्स इट. एक दिन के लिए ओवरनाइट फंड, 7 दिन के लिए लिक्विड फंड, कम रिस्क लेगा बैलेंस एडवांटेज, ज्यादा लेगा स्मॉल कैप, SIP, STP, SWP, सिलेबस खत्म. तो जितने भी जन बैठे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यू आर पेड टू सेल म्यूचुअल फंड, द ऑब्वियस आंसर इज नो. म्यूचुअल फंड बेचने के लिए पैसा नहीं मिलता है सर. आपका बिजनेस का दो ही काम है सर. आपका बिजनेस का काम है क्लाइंट को रखना है सर. इफ द क्लाइंट स्टिक्स टू यू, देन यू गेट मनी सर. पैसा बेचने के लिए नहीं मिलता है. तो मेरा आप सभी से सवाल है, बिकॉज चेताली जी स्क्रीन में आई कांट सी अदर पीपल बिकॉज इट्स अ वेबिनार. चेताली जी, आई विल इंटरेक्ट विद यू सो दैट वी कैन कनेक्ट विद द सेम विद द पार्टिसिपेंट. Yes, चेताली yes. जी, मेरे को एक बात बताइए, जो एंटायर इकोसिस्टम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का या फाइनेंशियल मार्केट इंडस्ट्री का, इसमें पैसा कौन लगाता है? पैसा लगाता है इन्वेस्टर, Investor. राइट? रिस्क कौन लेता है? Investor. इन्वेस्टर. पैसा मैनेज कौन करता है? फंड मैनेजर. Manager. फंड मैनेजर. रिकॉर्ड कीपिंग कौन करता है? RTA, Right. रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट. तो आप एग्री करते हैं राइट कि पैसा लगाता है इन्वेस्टर, रिकॉर्ड ले रहा है इन्वेस्टर, पैसा मैनेज कर रहा है फंड मैनेजर, और रिकॉर्ड कीपिंग करता है RTA. RTM. तो मेरा सवाल है, फिर हमारे पार्टनर क्या करते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब सब आदमी ये सब वही कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? तो मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, फिर आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर रोल इन द इंडस्ट्री? क्योंकि जब तक मेरे को नहीं पता मेरे को क्या काम करने का है, थिंग्स बिकम वेरी डाइसी. तो माय फर्स्ट रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चन टू ऑल द पार्टिसिपेंट इज, व्हाट इज योर रोल इन द इंडस्ट्री? क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द रोल दैट यू प्ले इन द इंडस्ट्री सर? आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन, यू कैन टाइप इन योर चैट बॉक्स, आपका क्या रोल है? व्हाट इज द रोल दैट यू प्ले इन दिस एंटायर इकोसिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री? यस, आशीष जी, कमलेश जी, अजीत जी, मयूर जी, कीर्ति जी,
I need your answer in the chat box. What is your role in the entire ecosystem of mutual fund industry? क्योंकि जब तक आप अपना रोल डिफाइन नहीं करेंगे ना, थिंग्स विल बी प्रमोट फर्स्ट देन ऑल वर्क सेल्स वंडरफुल ग्रेट आंसर कुसंग जी आशीष जी थैंक यू आई विल जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन रिलेशनशिप अवेयरनेस मनीषा जी थैंक यू सो मच अंजलि जी सेइंग रिलेशनशिप वंडरफुल आंसर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रुपेश कुमार सर इज सेइंग वंडरफुल रुपेश सर पीयूष जी सेइंग एसेट एलोकेशन वंडरफुल ग्रेट आंसर पीयूष जी वंडरफुल आंसर्स इन द चैट बॉक्स मैनेजिंग क्लाइंट बिहेवियर उमा जी बैंग ऑन वंडरफुल आंसर तो सर जैताली जी मैंने ना 19 साल के अनुभव में मुझे एक चीज तो पता चल गया आई हैव बीन ट्रेनिंग लॉट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर मैंने Hmm. 18,000 एमएफडी को ट्रेन किया है आई ट्रेन देम मेंटर देम मुझे लगता है इन द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंडस्ट्री एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमारा सिर्फ दो ही काम है बातें और मुलाकातें यस और नो दिस इज व्हाट योर सिलेबस इज आपका काम है बातें और मुलाकातें अगर आप पूछे ना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर बिजनेस माय पर्पस ऑफ बिजनेस इज बातें और मुलाकातें और सेल्स का दो ही नियम है मैं क्या ब्रह्मांड में आप कोई भी स्पीकर को ले आइए जी सेल्स का दो ही जो बंदा सेल्स में है वॉट एवर सेल्स इट इज वेदर इट इज फाइनेंशियल सेल्स और नॉन फाइनेंशियल सेल्स सेल्स का दो ही धर्म है मिलोगे तो मिलेगा बोलोगे तो बिकेगा दैट इज हाउ इट इज आप लोगों से मिलते रहेंगे तो आपको मिलेगा और आप बोलते रहेंगे तो बिकेगा दिखेगा। सही आप है। सोचते हैं कि सर मैंने क्लाइंट को बोला था कि इन्वेस्टमेंट के समय की लॉन्ग टर्म में करना है फिर क्लाइंट एक साल बाद परेशान सर क्लाइंट भूल जाता है सर क्लाइंट को भी नहीं पता कि उससे क्या बात हुई थी सर लोग भूल जाते हैं तो इसलिए आपको मिलना पड़ता है ताकि लोग भूले नहीं यस और नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ जी कम्युनिकेट हाउ डू यू स्टार्ट व्हाट आर योर एग्जाम्पल व्हाट इज योर रेफरेंस पॉइंट ये सारी चीजें मिलके क्लाइंट बनती है एक टोटल पैटर्न्स तो मैंने कल एक पार्टनर को पूछा कि सर आपका बिजनेस का पर्पस क्या होता है टू मेक प्रॉफिट मतलब नो सर द पर्पस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट टू मेक प्रॉफिट सर आपका बिजनेस का पर्पस है टू क्रिएट क्लाइंट एंड सस्टेन क्लाइंट दैट्स द पर्पस ऑफ योर बिजनेस अगर ये हो गया तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा जी। इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है क्रिएशन इज इजी डिस्ट्रक्शन इज इजी द प्रॉब्लम इज विद मेंटेनेंस हम्म। एसआईपी किसी का स्टार्ट करना आसान है और किसी का बंद करना भी आसान है ये सर ना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना भी आसान है और बंद करना भी इंसान आसान है चेताली जी मैंने मिकेंजी का रिपोर्ट पढ़ा था वो कहते हैं पिछले 40 साल में जितना रिटर्न मार्केट ने दिया है क्या उतना रिटर्न इन्वेस्टर ने कमाया है आंसर इज नो हम्म। तो जितना रिटर्न मार्केट ने जनरेट किया ना पिछले 40 साल में उतना इन्वेस्टर ने रिटर्न नहीं कमाया और उसका रीजन क्या था पता है उसका रीजन क्या था उसका रीजन था रिपोर्ट में इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जानकारी की कमी थी इसके कारण में लोगों ने पैसा नहीं कमाया नहीं बनाया और वो रिपोर्ट का सेकंड पार्ट क्या है चेताली जी पता है वो क्या कहते हैं आने वाले 40 साल में मैक्सिमम लोग पैसा क्यों नहीं बनाएंगे पता है क्यों नहीं बनाएंगे बताइए क्या कारण हो सकता है यही रीजन होगा सेम। उसका कारण है बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ओह अच्छा कि पिछले ओवर 40 साल में नहीं बना बिकॉज ऑफ लैक और आने वाले 40 साल में नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ ओवर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सर चाहे इन्वेस्टर हो या कोई भी ब्रह्मांड में आदमी हो जो आदमी ज्यादा ज्ञानी हो जाएगा ना वो परेशान रहेगा ये रूल है लाइफ का और अभी इंडिया में दिक्कत क्या है पता है इंडिया में भी दिक्कत ये है कि लोग कम है मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा है ये That's the बात तो सही। problem. The biggest problem in the country is there are less number of people and more number of motives. हर आदमी ज्ञान दे रहा है अब पानी कैसे पीना उसका 6 वीडियो है सर कोई बोलता है खड़े होके पियो टेढ़ा होके पियो बैठ के पियो सो के पियो लेट के पियो अरे जीरा का हल्दी का सौंफ का पीना किसका है, वो नहीं पता है सर द सब्जेक्ट ऑफ वाटर इट सेल्फ इज अ कंफ्यूजन तो लोग ये बोलते हैं, नहीं धनंजय भाई फ्यूचर क्या लग रहा है एडवाइजर का मैं कह रहा हूँ सर प्लीज अंडरस्टैंड द मोर द इन्फॉर्मेशन द मोर द कंफ्यूजन द मोर द कंफ्यूजन दैट इज अ बेटर रिक्वायरमेंट ऑफ एडवाइजर यस। जहाँ ज्यादा है ना सर वहाँ एडवाइस की जरूरत होती है जहाँ कमी है वहाँ पर एडवाइस की जरूरत ही नहीं होती सर लोग मुझे कहते हैं कि धनंजय भाई क्या बिना एडवाइजर के काम हो पाएगा 100% हो पाएगा सर 100% हो पाएगा डिपेंड करता है सर एडवाइजर किसी को चाहिए कि नहीं चाहिए डिपेंड करता है उसके गोल के ऊपर हम्म। चेताली जी मेरा बच्चा घर घर के छत पे क्रिकेट खेल रहा है गली पे क्रिकेट खेल रहा है उसको कोच का जरूरत ही नहीं है लेकिन जो बंदा इंडिया टीम के लिए खेलना चाहता है रणजी क्रिकेट खेलना चाहता है उसको कोच का जरूरत है जरूर जी। नीड एन एडवाइजर व्हेन योर गोल इज बिग जिसका गोल छोटे है उसको एडवाइजर का जरूरत नहीं है सर मैं क्लाइंट को बोलता हूँ इफ योर गोल इज स्मॉल यू डोंट नीड एडवाइजर इफ योर गोल इज बिग यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट हम्म। एडवाइजर आप हमेशा एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ना एक स्किल सीखी है यू गेट इनटू मोर ऑफ अ न्यूट्रल जैसे हम बोलते हैं ना हाउ टू एक्वायर क्लाइंट हाउ टू गेट पीपल ऑन बोर्ड तो दिस स्किल विल बी डेवलप्ड व्हेन यू आर अ न्यूट्रल स्पीकर हमारे साथ दिक्कत क्या है कि म्यूचुअल फंड तो सही है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या बोल के आते हैं पता है सिर्फ म्यूचुअल फंड ही सही है
दैट इज वेयर द ट्रैप इज। जो मेरा प्रोडक्ट है ना सर, वो हमेशा महान नहीं है, यस और नो, एंड वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम्म अगर हम वो इंपॉर्टेंट नहीं करेंगे, विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट, हम कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो आप, व्हेन आई गो टू अ क्लाइंट, जब मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ, व्हेन आई मीट विथ हिम, मेरा हमेशा फोकस रहता है कि क्या मैं उससे एक बेहतर कम्युनिकेशन दूं। हम्म लाइक म्यूचुअल फंड के लिए तो पैसा नहीं बनता है, दैट्स वेरी क्लियर, आई वी कम्युनिकेटेड, यू आर नॉट बीन पेड फॉर म्यूचुअल फंड्स और सेलिंग अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, यू आर पेइंग फॉर सस्टेन इट। कहते हैं ना, क्रिएशन इज इजी, डिस्ट्रक्शन इज इजी, प्रॉब्लम इज मेंटेनेंस। और Yeah. लाइफ नोट में हमेशा कहता हूँ कि कॉलेज में मुझे एक सुंदर लड़की दिखी, पहली नजर में प्यार हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट। Right. उससे हमने शादी कर लिया, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, हमने उसको डिवोर्स दे दिया, उसे हम क्या कहते हैं, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, ये सर। अब जिसका 25th एनिवर्सरी है ना, वो खाली मेंटेनेंस चल रहा है। चाहे आपके पापा मम्मी हो, मेरे पापा मम्मी, सबका डेली 2 दिन में झगड़ा होता है, ये सर नो, बट Correct. मेंटेन करते हैं सर। वैसे ही मार्केट है सर, इन्वेस्टमेंट और मार्केट में ज्यादा कुछ दूरी नहीं है, इट इज ऑल सेम। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, व्हाट इज माय रोल टू एंश्योर पीपल कम टू मी, पीपल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय इकोसिस्टम इज, कैन आई टॉक मोर ऑन मनी एंड लाइफ। Most of the people when they go to market, they talk about investment, market, GDP, 5 trillion economy, रसिया, crude, ये सर, क्लाइंट को ज्यादा इससे लेना देना कुछ है नहीं सर। इंडिया बेसिक में चीजें। अभी भी लोग ना मनी और लाइफ को लेके कंफ्यूज हैं। व्हेन आई डू इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, व्हेन आई एड्रेस पीपल अक्रॉस कंट्री, मैडम लोगों को अभी पैसा और लाइफ को लेके प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट तो दूर का बात है सर। इन्वेस्टमेंट तो इज नॉट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट ऑल। इन्वेस्टमेंट विल कम वेरी लेट। फर्स्ट, पैसा क्यों चाहिए सर, ये भी लोग कंफ्यूज हैं। In India, people lack clarity about money. Sir, explain them money, explain them psychology of money. Psychology of money is a very, very important topic that you have to understand because जब मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ ना, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगर क्लाइंट सामने बैठा है और जिसके पास कैपेसिटी है देने का, मेरी कन्वर्सेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि एक क्लाइंट को मिलूँ तो एक कन्वर्जन हो। हम्म कन्वर्सन इज टू वन सर। मैं 10 कॉल पे गया, एक क्लाइंट ने दिया, वो काम से धंधा नहीं होता सर। मैं एक के पास गया, डू आई हैव दैट पोटेंशियल, डू आई हैव द क्लैरिटी, हाउ डू आई पिच, हाउ डू आई स्टार्ट, हाउ डू आई कम्युनिकेट, व्हाट इज द कन्विक्शन ऑन कैरी। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बंदा इस मार्केट में काम कर रहा है ना, अगर उनका खून निकले तो उनका खून का ब्लड ग्रुप होना चाहिए इक्विटी पॉजिटिव, यस और नो। अगर आपका ब्लड ग्रुप इक्विटी पॉजिटिव नहीं है तो यू शुड नॉट बी इन दिस मार्केट सर। मार्केट के लेवल के हिसाब से धंधा नहीं होता सर। यू डोंट डू बिजनेस बेस्ड ऑन मार्केट लेवल सर, यू डू बिजनेस बेस्ड ऑन योर माइंड सेट सर। मार्केट अगर डिसाइड करता है आपको बिजनेस क्या होगा, देन यू आर इन अ रॉन्ग बिजनेस। यू वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये धंधे में हमको ट्रेल मिलता है, रेगुलर पे आउट क्यों मिलता है, बिकॉज वी हैव टू टेक द लोड ऑफ मार्केट एवरी डे। मार्केट सुबह खुलेगा, रात को बंद होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, क्लाइंट के क्वेरी आएंगे, क्लाइंट का इंट्रैप आएगा, वी हैव टू कम्युनिकेट दैट, दैट इज व्हाट द रोल इज। तो आई एम श्योर कि फर्स्ट ऑफ ऑल माई रोल इज डिफाइंड इन द एंटायर इकोसिस्टम, कि मेरा क्या काम है। मेरा सिर्फ दो ही काम है, बातें और मुलाकातें। इफ यू आर एबल टू कनेक्ट, यू कैन टाइप सी इन द चैट बॉक्स, माई रिक्वेस्ट टू पार्टिसिपेंट, इफ यू आर एबल टू कनेक्ट टू द थीम व्हाई आर वी डिस्कसिंग टुडे, you can just type C in the chat box so that we can take the session forward. Thank you Ajit ji, thank you Pranita ji, Ashish ji, thank you, wonderful. Bhavna ji, thank you for your response. Ashish Mitra ji, okay, great. That means एक चीज तो बनाए, just can we have more C in the chat box, because I believe there are lots of people who have joined in the session. Can we have more response in the chat box? I know it's a post lunch session, तो नींद और आपके बीच में मैं खड़ा हूँ मुझे पता है, बट आई एम श्योर कि वी आर हियर टू ऐड सम वैल्यू, एंड इफ यू आर एट वैल्यू, लेट्स बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट। कविता जी थैंक यू, करण जी थैंक यू फॉर दिस, राइट। एक चीज तो क्लियर है। एंड हाउ डू वी गेट दैट कन्वर्सेशन राइट, हाउ डू वी गेट दैट इंटरेक्शन राइट, हाउ डू वी गेट दैट क्लाइंट एक्विजिशन राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई ऑलवेज सेड कि योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एंड मनी विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दिस बिजनेस डन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बात कैसे करूँ, क्लाइंट से स्टार्ट कैसे करूँ। हमेशा याद रखिएगा, whenever a distributor is meeting with a client, always be on connection mode, don't be on correction mode। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं ना, हमेशा कनेक्शन मोड में रहिएगा, करेक्शन मोड बाद में आएगा। एक द रूल ऑफ सेल्स सेज, डोंट करेक्ट पीपल बिफोर कनेक्टिंग, अदरवाइज दे विल गेट डिस्कनेक्टेड। आप किसी को कनेक्ट करने के पहले करेक्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब हम्म शैताली जी पंगा कहाँ रहा है, मैं एक 60 ईयर्स अंकल से मिला, उन्होंने अपना पूरा दिखाया कि धनंजय मेरा LIC है, NSC है, KVP है, वॉट एवर बैंक डिपॉजिट है ऑल। क्योंकि मैंने इतना ज्ञान ले लिया कोविड के बाद में, मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर कोविड के बाद में इतना वेबिनार अटेंड किए ना, वो फंड मैनेजर से बात ही नहीं करते हैं, सब GDP टू मार्केट कैप नीचे स्टार्टिंग ही होता है उनका।
तो हम क्या करते हैं सर, आपका तो फायदा नहीं हो रहा, रियल रिटर्न फायदा नहीं है, इन्फ्लेशन बीट ही नहीं हो पा रहा है। डोंट डू ऑल दिस। सर जब वो पहली बार अपना कुछ इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है ना, पहले उसको आप सैल्यूट कीजिए कि सर इतना जो आपने प्लान किया है ना, लोग इतना भी नहीं करते हैं। सर वो 60 साल का अंकल है, आपको खुद को, मेरे को खुद को और आपको 15 साल पहले खुद भी नहीं पता था म्यूचुअल फंड क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, या इन्वेस्टमेंट। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, मोस्ट ऑफ अस। तो क्लाइंट को कैसे पता होगा? वो बंदे ने चालू किया आज से 30 साल पहले इन्वेस्टमेंट, उस समय वही चलता था, उसने जो चलता था वही किया उसने। ही हैज नॉट डन समथिंग वेरी रॉन्ग। अभी चेंज हो गया सिनारियो, दैट ही इज नॉट अपडेटेड, दैट्स द ओनली चैलेंज। बट अगर उसको ये प्रूव करना कि तू जो कर रहा है सब बेकार है और मैं जो बता रहा हूँ सब सही है ना, वहां पर क्लाइंट डिस्कनेक्ट हो जाता है। The rule of sales says whenever you're meeting for the client first time, try to build that connection, right? If your connection is great, correction will be followed in future, not on the first meeting. उसको बताओ कि सर ये मैं आपको सैल्यूट करता है, इतना आपने किया, लोग इतना भी नहीं करते। आई मीट सो मेनी पीपल, लोगों का इतना भी प्लानिंग नहीं होता। उसको लगता है पहली बार आके कोई बंदा एलिवेट करके गया। इज देयर समबडी हु इज टॉकिंग सेंस विद लॉट्स ऑफ एलिवेशन, दैट इज द नीड ऑफ द बिजनेस। आप देखो चेताली जी, आप बताइए ना, बच्चा ज्यादा किससे क्लोज रहता है, मम्मी से कि पापा से? मम्मी से। मम्मी से। क्यों पता है? द सेम रीजन। मम्मी हमेशा कनेक्शन मोड में होती है और पापा हमेशा करेक्शन मोड में होते हैं। ये सर, करेक्ट। एक 5 साल का बच्चा है, सामने में दूध का ग्लास पड़ा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, मम्मी कैसे कन्विंस करेगी? अच्छे से दूध समझाते। पी ले, धोनी बनेगा, सहवाग बनेगा, बाल लंबे होंगे, बोन स्ट्रांग होंगे। ये सर नो, दिस इज हाउ मदर इज गोइंग टू कम्युनिकेट टू हिज चाइल्ड। बट करेक्ट। वहीं पर अगर पापा खड़ा है और बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो पापा क्या बोलेंगे? पापा बोलेंगे 60 रुपए लीटर है, पीता नहीं है, गरीबों को मिलता नहीं है, जीडीपी, मार्केट कैप, साफ रेशियो, अल्फा, स्टैंडर्ड डिविएशन, सब बात करेंगे सर नो। जी। लगता है बच्चे को, लगता है पापा नहीं, ये तो गुंडा है। उसको लगता है मम्मी ने घर पे गुंडा पाल के रखा है। इसीलिए बच्चा कनेक्ट नहीं होता है, बिकॉज पापा करेक्शन मोड में ज्यादा रहता है। यस और नो? जी। दैट इज व्हाट द चैलेंजेस। तो आपने, हम सभी ने बचपन में गेम खेला है, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़। आई एम श्योर वी हैव प्लेड दिस गेम, राइट? अब बीच में हम क्या बोलते थे? हाथी उड़, गाय उड़। और आप सभी को पता है कि हाथी भी उड़ता नहीं है, गाय भी उड़ता नहीं, लेकिन आपने उड़ाया होगा। क्यों उड़ाया? क्योंकि जो आदमी माहौल बना सकता है ना सर, मैडम, वो सब कुछ उड़ा सकता है। पहले माहौल बनाइए सर। इफ यू वांट टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, पीपल आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन यू। यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट दैट कनेक्शन, राइट? ये बिजनेस में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट में गिनती का 10-12 ऑब्जेक्शन है। इस बिजनेस का सबसे बेस्ट पार्ट क्या पता है? यू लर्न 10-12 ऑब्जेक्शंस। अच्छे कपड़े पहनिए, लोग को 5 लोगों को डेली मिलिए, अपने आप बिजनेस आएगा, अपने आप बिजनेस आएगा। यू मीट विथ 5 पीपल एवरी डे, अच्छा कपड़ा पहनो, लुक स्मार्ट, और 12 ऑब्जेक्शन के अच्छे आंसर रखो कि क्या, अगर सब क्लाइंट पूछता है उसका आंसर क्या देने का है। एंड दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट मैम। चेताली जी, मुंबई में एमकॉम किया हुए बंदे को 35 25 30 हजार 40 हजार का नौकरी नहीं मिलता है। एमकॉम इज 17 years ऑफ स्टडीज, नॉट गेटिंग अ सैलरी ऑफ 30 40 35 थाउजेंड रुपीज। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? NISM 5 एग्जाम पास करो, आप क्लाइंट से मिलो, रेगुलर इंटरेक्शन करो, महीने का 3-4 लाख 5 लाख रुपए कमाओ। टेल मी वन इंडस्ट्री दैट कैन गो गिव यू दिस। एंड जिसको हमने बेचा है म्यूचुअल फंड ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो क्लाइंट हमको सैल्यूट करेगा। आपने जिसको दिया है ना, दिस इज बिकॉज दिस इज वन प्रोडक्ट विच गिव्स यू MRP, मनी रेस्पेक्ट एंड प्राइड। MRP, MRP इज मनी रेस्पेक्ट एंड प्राइड। मैं जब किसी को म्यूचुअल फंड बेचता है तो मेरे को पे आउट मिलता है। जिसको मैं बेचता है वो 10 साल बाद मिलेगा, तो मेरे को सैल्यूट करेगा, बिकॉज ऑफ यू आई एम एबल टू अचीव माई फाइनेंशियल गोल। और सेल करने के बाद जब रात को मैं घर पे आता हूँ, एक प्राइड वाला फीलिंग आता है कि डन समथिंग गुड इन माई लाइफ। यस नो, दैट इज व्हाट वी टॉक्ट अबाउट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री दैट विल गिव यू पे आउट बेस्ड ऑन योर पास्ट एफर्ट। चेताली जी, एक लेडी दिन में 500 पापड़ बेचती है और उसको 1 रुपया का प्रॉफिट होता है पर पापड़। टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 500 रुपये। जी। तो अगर उसने मंडे को 500 पापड़ बेचा तो प्रॉफिट कितना? 500 रुपये। ट्यूसडे को 500 पापड़ बेचा, प्रॉफिट कितना होगा? 500 रुपये। हम्म। वेनेसडे को उसका तबीयत खराब हो गया, पापड़ नहीं बिका, पैसा कितना मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा बिजनेस क्या है पता है? म्यूचुअल फंड में आपने जो सोमवार मंगलवार को पैसा बेचा है ना, उसका भी ट्रेल आपको बुधवार को मिलता है। जी। यस और नो? दैट इज व्हाट म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट। और किस पे मिलता है? मार्क टू मार्केट पे। हम्म। तो जिसका मैंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लेके आया 10 साल पहले, और आज उसका वैल्यू 80 लाख हो गया है, मेरे को पे आउट 80 लाख पे मिलता है, मेरे को 10 लाख पे नहीं मिलता है। आई एम बीन पेड इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ माई एफर्ट दैट आई पुट 10 years earlier. Yes or no? And that is what it is all about. So this is the industry between sir. No, वो हमारा कुछ स्टेक पे नहीं है सर। ओनली स्टेक इज दैट वाइब्रेशन, दैट SEE फैक्टर, स्माइल, एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। उसको लगी एक बंदे का जो वाइब्रेशन इतना वर्चुअल है ना, कि ये बंदा जाके ना कुछ भी कर सकता है।
सेल्स वाला बंदे को चाहिए सर, दैट यू नीड दैट ऑरा, राइट? मार्केट जो है ना, लोग मुझे कहते हैं कि धनंजय भाई मार्केट नॉलेज, मैं कहता हूँ मार्केट नॉलेज इज ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज द सेम नॉलेज, ज्यादा नॉलेज का फर्क नहीं है, ज्यादा नॉलेज का फर्क ही नहीं है सर, प्लीज अंडरस्टैंड। नॉलेज इज नॉट दैट अ बिग गैप, नॉलेज का गैप ही नहीं है। गैप क्या चीज है पता है सर? गैप ये है कि क्या मैं वो कम्युनिकेट जो कर रहा हूँ उसमें क्लैरिटी है कि नहीं है। सर आप मेरे को एक बात बताओ, एक साल बाद मार्केट बढ़ेगा कि गिरेगा? आई हैव द आंसर इन द चैट बॉक्स। आफ्टर 1 year, is the market going to go up or come down? Can I have the answer in the chat box? Up or down, whatever the answer is. I'll just request all the participant, can I have the answer in the chat box? नेक्स्ट एक साल, आने वाले एक साल में मार्केट बढ़ेगा कि गिरेगा? कोई कह रहे हैं आप, कोई कह रहे हैं डोंट नो, अनप्रेडिक्टेबल, ओके, नॉट श्योर, ओनली गॉड नोस, वंडरफुल, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि प्लीज अंडरस्टैंड, आने वाले एक साल में किसी को नहीं पता है सर। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि नॉलेज, तो अब नॉलेज में जब क्लाइंट के पास जाएगा, जब मुझे ही नहीं पता है कि एक साल बाद बढ़ेगा कि गिरेगा, देन हाउ डू आई कन्विंस माई क्लाइंट? ये सर नो, लोग मुझे कहते हैं कि फिर धनंजय भाई, मैं कह रहा हूँ नॉलेज इज फंडामेंटल, बेसिक नॉलेज कि किसको क्या देने का है। लोग मुझे कहते हैं कि धनंजय भाई मैं ना क्लाइंट के रिस्क एपिटाइट के हिसाब से बताता हूँ। एक्चुअली चेताली जी, क्लाइंट का रिस्क एपिटाइट होता ही नहीं है, रिस्क एपिटाइट डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। लास्ट ईयर अगस्त में मेरा सिर्फ क्लाइंट एग्रेसिव थे। लास्ट ईयर जब मार्केट 26,000 था ना निफ्टी, हर क्लाइंट एग्रेसिव था। इस साल जनवरी में जब मार्केट 22,000 था, तब मार्केट क्लाइंट सब कंजर्वेटिव हो गए थे, और आज 24,800 900 में क्लाइंट मॉडरेट है। एक साल में क्लाइंट का रिस्क कैपिटल बदल गया मैडम। इन 1 year रिस्क कैपिटल ऑफ द क्लाइंट इज चेंजिंग। तो सर जब भी आप क्लाइंट से मिले ना सर, ये रिस्क कैपिटल आप कहते हैं ना कि आपका रिस्क कैपिटल क्या है सर, रिस्क कैपिटल से बेहतर है आप ये 3 एपिटाइट पे काम कीजिए। ये 3 एपिटाइट क्या है, एक सवाल के बाद मैं आंसर दूंगा। अगेन माई क्वेश्चन टू एवरीवन इज, सर आपके पास दो क्लाइंट हैं, एक का उम्र है 25 साल और एक का उम्र है 60 साल, दोनों में से इक्विटी किसको देंगे? प्लीज टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। यू हैव टू क्लाइंट्स, एक का एज है 25 years, दूसरा का है 60, आप इक्विटी किसको देंगे? इक्विटी 25। सर वहीं पर हम ट्रैप में आ जा रहे हैं, पंगा क्या पता है? क्योंकि हमारे माइंड में कंडीशन कर दिया गया है कि जो 25 सालों का उसको इक्विटी देने का है, जो 60 सालों को इक्विटी नहीं देने का है। नो, इक्विटी इज नॉट अबाउट एज सर, इक्विटी इज अबाउट अदर फैक्टर। आप देखिए मैक्सिमम आपके क्लाइंट जो आपके पास होंगे ना, उसका उम्र 60 साल के ऊपर होगा और मैक्सिमम इक्विटी में ही होगा उनका पैसा। ये सुनो सर, इक्विटी एज को लेना ही देना नहीं, देयर इज नो कोरिलेशन विद दैट। इंपॉर्टेंट इज सर, आप सभी को ये तीन एपिटाइट डिपेंड करती है सर। आई जस्ट वांट एवरीवन टू राइट इट डाउन। इफ यू आर मीटिंग विद अ क्लाइंट, अगर ये 3 एपिटाइट है, ही डिजर्व इक्विटी। इफ ही डजंट हैव दिस 3 एपिटाइट, ही डजंट डिजर्व इक्विटी। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी एपिटाइट। सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी एपिटाइट। चेताली जी, मैं 25 साल का हूँ, मेरा सैलरी 25,000 रुपये है, मुंबई में मैं काम करता हूँ, क्या मैं इक्विटी में पैसा डाल सकता हूँ? आंसर इज नो। मुंबई में 25,000 में घर चलाना भारी है, इक्विटी तो दूर का बात है। ये सुनो, मैं उम्र तो मेरी 25 है, लेकिन मेरे पास जो अभी इनकम है और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे मुझे घर से पैसा मांगना पड़ेगा, मुंबई में चल भी नहीं पाऊंगा मैं उतना पैसे में। तो लोगों ने क्या बोला कि 25 साल का इक्विटी नहीं सर, 25 साल का इक्विटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी इनकम बता देगी, इनकम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच कीजिए। वैसे ही मेरे एक 60 साल के अंकल हैं, उनका पेंशन आ रहा है महीने का 1 लाख रुपया, बच्चों का सेटल्ड हो गया है, सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, पैसे का जरूरत नहीं है, और उनको 10 साल पैसा फ्री है, ऐसे ही पड़ा है, वो शायद एलिजिबल है इक्विटी के लिए। तो हमने जो माइंड में डाला है कि 25 का इक्विटी बनता है, 60 का नहीं बनता है, दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग। तो द फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एपिटाइट। द सेकेंड इज टाइम एपिटाइट। टाइम एपिटाइट इज, एक मेरा क्लाइंट है सुपर एग्रेसिव, वो कहता है धनंजय भाई रिस्क तो लेना ही चाहिए, क्या मुझे इक्विटी देना चाहिए? यस देना चाहिए, लेकिन अगर वो कहता है धनंजय भाई सिर्फ 6 महीने के लिए डालना है पैसा, एलिजिबल ही नहीं है, फिर उसका टाइम एपिटाइट अलाउ नहीं करता है सर। ही हैज अ रिस्क एपिटाइट बट ही डजंट हैव अ टाइम एपिटाइट। यस और नो, दैट इज द सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड इज एक्सपीरियंस एपिटाइट। एक्सपीरियंस एपिटाइट का मतलब है कि क्या उसने पास में कभी इक्विटी का एक्सपोजर लिया है कि नहीं लिया है। वी ऑल नो कि 10 साल में पैसा बनेगा, वी ऑल, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। आई एम श्योर नो वन इन दिस प्लेटफॉर्म विल डिबेट कि 10 साल में पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इन द वर्ल्ड ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट देर आर टू फैक्टर्स, वन इज कॉल्ड रिटर्न एक्सपीरियंस एंड द सेकेंड इज कॉल्ड एक्सपीरियंस ऑफ रिटर्न। वन इज कॉल्ड रिटर्न एक्सपीरियंस एंड सेकेंड इज कॉल्ड एक्सपीरियंस ऑफ रिटर्न। अब दोनों में फर्क क्या है? 10 साल के बाद पैसा बनेगा उसको कहते हैं रिटर्न एक्सपीरियंस, कि रिटर्न एक्सपीरियंस अच्छा होगा 10 साल बाद। लेकिन ये 10 साल तभी आएगा जब हर साल क्रॉस करेगा क्लाइंट।
यस और नो? चिताली जी, लोग कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म के लिए करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इटसेल्फ इज अ मिथ। एक्चुअली लॉन्ग टर्म बोल के कुछ होता ही नहीं, इट्स ऑल शॉर्ट टर्म। मैडम आप मेरे को एक बात बताओ, मेरा 80th बर्थडे कब आएगा? मेरा 80th बर्थडे तब आएगा जब मैं अगले साल जिंदा रहेगा, ये सर नो। अगले साल में मरेगा तो फिर 80th बर्थडे कहाँ से आएगा मेरा? द सेम वर्क्स विद इक्विटी। आपका क्लाइंट लॉन्ग टर्म में तब पैसा बनाएगा जब वो शॉर्ट टर्म में जिंदा रहेगा ना सर। अगर आपने क्लाइंट का 10 लाख रुपया डाल दिया और वो पहली बार डाल रहा है और 8.5 लाख रुपया वो देख लिया कि पोर्टफोलियो एक साल में गिर के 8.5 9 लाख हो गया है, इवन दो 10 साल का टाइम फ्रेम है, उसका एक्सपीरियंस रिटर्न खराब हो जाएगा ना। जब अपर मार्केट 10 लाख पहुंचेगा पैसा निकाल देगा, बिकॉज हिज एक्सपीरियंस और रिटर्न इज बैड। जी। इज वेयर द चैलेंजेस। आई होप यू आर गेटिंग एज अ पार्टनर। एक्सपीरियंस एपिटाइट होता है सर, उसको पैसा उसने डाला है कि नहीं डाला, नहीं डाला तो डजेंट मैटर, हम्म। राइट? सो व्हेन आई गो टू अ पार्टनर सर, मेरे को यहाँ पर अपने आप को कंडीशनिंग करना है। ये मार्केट में ना लॉजिक ज्यादा अप्लाई करो सर, हम ज्यादा थ्योरी अप्लाई करते हैं। थ्योरी से मार्केट नहीं चलता है सर, प्रैक्टिकल से मार्केट चलता है। You are a seasoned player. I'm sure कि the kind of research, the kind of software, the kind of tool that Nirmal Bang has, it's a different at this different topic altogether. वो तो already in-house आपको मिल जाएगा। लोग मुझे कहते हैं कि धनंजय भाई, तो फिर मैं क्लाइंट मार्केट के बारे में पूछता तो मैं क्या बोलूँ? सर मार्केट के बारे में कोई क्लाइंट पूछता है ना, तो मैं आपको एक 30 सेकंड का कमेंट्री बताता हूँ, ये रट्टा मार लो। ये हर मार्केट के एप्लीकेबल है। गीताली जी, ये वाला जो कमेंट्री है ना, हर मार्केट में यूज कीजिए, हर मार्केट में चलेगा। सबसे पहले क्या बोलना है, क्या पता है आपको? आपको सबसे पहले ये बोलने का, इन द शॉर्ट टर्म द मार्केट इज एक्सपेक्ट टू बी वॉलेटाइल, फ्रॉम लॉन्ग टर्म लुकिंग गुड। क्या बोलने का है? इन द शॉर्ट टर्म द मार्केट इज एक्सपेक्ट टू बी वॉलेटाइल, फ्रॉम लॉन्ग टर्म लुकिंग गुड। Good. सेकंड आपको बोलना है, वी आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। सेकंड क्या बोलने का? वी आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, वी आर नेगेटिव टुवर्ड्स आईटी, फार्मा एंड सीमेंट, पॉजिटिव टुवर्ड्स एफएमसीजी। द इंटरेस्ट रेट इज द कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस, मे माउंटिंग द यूक्रेन क्राइसिस, वंदे मातरम, जय हिंद। अब बताओ सर, क्लाइंट को क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? बस आपको बोलने का है। दिस इज व्हाट इट इज। हर 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 आउटलुक में तो वही बेसिस रहेगा सर, चेंज तो ज्यादा होगा नहीं। इंपॉर्टेंट इज आपको माइंड आउटलुक समझना है। अब मार्केट आउटलुक कम सीखोगे तो चलेगा सर। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको माइंड आउटलुक ज्यादा पढ़ना है, वो बंदा सोच क्या रहा है। चेताली जी, अभी मैं परसों टीवी शो कर रहा था डीडी न्यूज के लिए, तो एक बंदा क्या हम्म। क्वेश्चन पूछता है कि सर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा है कि अभी 6 महीने के अंदर वर्ल्ड वार होने वाला है, और इस बार न्यूक्लियर वार होगा, तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, इसमें आपका क्या कहना है? मैंने बोला कि सर अगर आपने कहीं पढ़ा है तो शायद सही पढ़ा होगा सर, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आपने कहीं पढ़ा है, सुना है। मैंने बोला सर देखो, दुनिया खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड वार हो जाएगा, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। चिता लीजिए, अगर न्यूक्लियर वार हुए, दुनिया खत्म हो जाए, आप में कोई नहीं रहे तो प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने बोला सर दुनिया खत्म नहीं हुआ और तो आप जिंदा रह गए और गरीब रह गए तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ये सर नो, द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ डाइंग सर, द प्रॉब्लम इज ऑफ लिविंग। मेरा वैगनार है और मेरा पड़ोसी का मर्सिडीज है ना, मैं तो आधा जल के ऐसे ही मर जाएगा। बाकी तो बाद में तो लास्ट में जलाते हैं, इंसान जलते जलते बीच में कितनी बार मर जाता है। ये सही बात है। एक बंदा कह रहा है कि धनंजय भाई, मैंने रिपोर्ट पढ़ा है कि अभी यूएस में रिसेशन आने वाला है और पूरा ग्लोबल मंदी आएगा, इस पे आपका क्या कहना है? वर्ल्ड में रिसेशन आने वाला है, इस पर क्या कहना है? मैं सर, आपने पढ़ा हो तो सही पढ़ा होगा। तो मैंने उसको पूछा कि सर अभी आप कौन सा गाड़ी चलाते हैं? तो बोलता है सर अभी तो मैं वैगन आर चलाता हूँ। तो मैंने बोला कि सर आपका तो बाय डिफॉल्ट रिसेशन चल रहा है सर, आपका रिसेशन क्या आएगा? हाँ, अगर आपका कोई 1,000 200 2,000 करोड़ का प्लांट होता तब जाके बात होती सर। अदरवाइज सर, रिसेशन इज नॉट फॉर यू सर, प्लीज अंडरस्टैंड। ये जो रिसेशन है ना, ये फ्रेम ऑफ माइंड है, इट इज अ फ्रेम ऑफ माइंड। रिसेशन का मार्केट से ज्यादा कोई कोरिलेशन, देयर इज नो कोरिलेशन ऑफ रिसेशन इन द मार्केट। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। हमको एज अ एडवाइजर समझना है कि सर वही मंदी में लोग बीएमडब्ल्यू भी लेते हैं, घर भी बनाते हैं, वेकेशन में जाते हैं, वही तेजी में आदमी वही करता है सर। इट्स अ फ्रेम ऑफ माइंड सर, वेयर यू वांट टू प्लेस योर सेल्फ। इफ यू आर एबल टू प्लेस योर सेल्फ, यू बिकम ग्रेट इन द वर्ल्ड ऑफ सेल्स, राइट? तो इफ यू आर एबल टू get that essence, what my understanding of the subject is, so let's make this subject very simple. जितना आप इसको सिंपल बनाओगे ना, your role as a distributor, as a financial market professional in this industry is to make this topic IS interesting and simple. इंटरेस्टिंग। चेताली जी, लोग पैसे लोग के लेके कंफ्यूज हैं। अभी हमारा दिन का शुरुआत कैसे होता है पता है? दिन का शुरुआत होता है, सबसे पहले 7 बजे से क्या सुनते हैं पता है? पैसा सब मोह माया त्याग दो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो बंदा बोल रहा है, बोलने का 2 लाख रुपया लेता है, ये और नो। सुबह 7 बजे आप बोलते हो पैसा त्याग दो, 10 बजे बोलते हो ईएमआई दो, रेंट दो, फीस दो, देना क्या पहले डिसाइड करो।
whether you want to live a spiritual life or a social life, we are stuck between that कंफ्यूजन में ही है. confusion. तो आप डिसाइड करो कि चाहिए क्या. प्रॉब्लम क्या है कि अब हम ये डिसाइड नहीं करते ना चाहिए क्या. वी डोंट गेट व्हाट वी वांट. We all, if you are married, you have responsibility. The foundation is attachment. You have to live a social life with attachment, sir. जरूरत है, जिम्मेदारी है. तो यहाँ पर if you are not vocal about money, things doesn't shape out. आज के डेट में I always when I communicate, जब मैं क्लाइंट से मिलता हूँ पहली बार ना, मैं मेरे को क्लाइंट पूछता है कि धनंजय व्हाट डू यू डू. आई ऑलवेज से आई मेक दिस सेंटेंस कि मैं लोगों का फाइनेंशियल लाइफ डिजाइन करता हूँ. आई हेल्प पीपल टू डिजाइन देयर फाइनेंशियल लाइफ. 90% पार्टनर का इंट्रोडक्शन ही गलत है मैडम. दे डोंट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस. दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज. अपने काम के बारे में क्या बोलूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. जी. व्हाट डू आई टॉक अबाउट माय वर्क. जस्ट वन मिनट जस्ट व्हाट डू आई टॉक अबाउट माय वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं अपने काम के बारे में क्या बोलता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. अगर मैं अपने काम के बारे में डिफाइन नहीं करूंगा ना, नहीं होगा. 90% पार्टनर की वाइफ को पूछते हैं हस्बैंड क्या करते हैं, वो कहते हैं इनका तो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का काम है. दिस इज नॉट योर इंट्रोडक्शन. दिस इज नॉट द वे यू शुड बी इंट्रोड्यूस. क्योंकि आपने ये बताया नहीं घर पे कि आप काम क्या करते हैं. ये सो ना जस्ट इट स्टार्ट विथ योर होम सर. ये जो फाउंडेशन है ना, आपका नेक्स्ट लेवल का निर्माण जो होगा वो आपके घर से होगा. योर फाउंडेशन एट होम विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. आपके हस्बैंड क्या करते हैं, ही इज अ वेल्थ फाइनेंशियल आर्किटेक्ट, इज अ वेल्थ आर्किटेक्ट. क्या करते हैं, लोगों का फाइनेंशियल लाइफ डिजाइन करते हैं. एंड दिस इज व्हाट यू डू. आप तो यही तो कर रहे हैं ना. किसको कब क्या पैसा चाहिए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ गोल ऑफ लाइफ में, उसी हिसाब से तो आप उसको बताते हैं कि दिस इज व्हाट यू नीड एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली इज योर वर्क. सो एज द डिस्ट्रीब्यूटर योर रोल इज टू डिजाइन द फाइनेंशियल लाइफ ऑफ पीपल. जब ये कम्युनिकेशन आपसे चालू होता है ना सर, थिंग्स बिकम वेरी शार्प. तब लोगों में क्यूरियोसिटी बनती है. हम अपना इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट के हिसाब से करते हैं, सॉल्यूशन के हिसाब से नहीं करते हैं. द प्रॉब्लम इज व्हेन हम जो क्लाइंट को एक्वायर करने जाते हैं, वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट. वी डोंट टॉक अबाउट सॉल्यूशन. टॉक अबाउट सॉल्यूशन. व्हाट इज योर सॉल्यूशन दैट यू ब्रिंग टू द टेबल. सर मैं क्या करता हूँ सर, मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, मैं एक एडवाइजर हूँ सर. जब जो फाइनेंशियल एडवाइजर, ये एडवाइजर जो वर्ड है ना, लोगों को जनरली एक परसेप्शन है कि ये लोग अपने फायदे के लिए करते हैं. ये परसेप्शन है, इट्स अ परसेप्शन. द प्रॉब्लम इज नॉट विथ यू सर, इट्स अ परसेप्शन ड्रिवन वर्ड. Can we change the setup, can we change the intro talk? That's very important. Sir, what do you do? Sir, I help people to design their financial life. जब ये पैटर्न से चालू होता है ना, तब बात करते हैं कि यस देयर इज समबडी हु इज टॉकिंग अबाउट व्हाट सॉल्यूशन ही इज ब्रिंग टू द टेबल. इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ब्रोकिंग, व्हाटएवर इट इज, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. लेकिन सर हमारा वो सॉल्यूशन होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. Direct versus regular, that will always be there. Direct stock versus mutual fund will always be there. PPA versus ELSS always be there. आप इसको प्लेस कैसे करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गिनती का तो 12 8 10 ऑब्जेक्शन है, मैंने बोला है 10 12 ऑब्जेक्शन है, उससे ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है. क्लाइंट क्या ऑब्जेक्शन दे सकता है आपको, रिस्क है, गारंटी नहीं है, पैसा डूब जाएगा, कितना रिटर्न मिलेगा, आपको कल कुछ हो गया तो आपका क्या फायदा है, ये तो क्वेश्चन पूछता है. इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं है. सर अगर आप लोग यहाँ पर ना खुद अगर 2 मिनट बैठ के लिखोगे ना कि क्लाइंट मुझे क्या सवाल पूछता है, यू विल बी स्ट्रक एट 7 क्वेश्चन. 7 के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं है आपके पास. देयर विल नॉट बी मोर देन 7 क्वेश्चन. डू वी हैव अ राइट आंसर फॉर दिस, ये इंपॉर्टेंट है. मैं अपने आप को स्टार्ट कैसे करता हूँ, व्हाट इज माई इंट्रो अबाउट व्हेन आई सिट इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट. सर ये ऑनबोर्डिंग का ना तरीका बहुत सिंपल है सर. ऑनबोर्डिंग में आपकी कम्युनिकेशन की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. हाय सर, आई एम धनंजय बांटिया, डायरेक्टर ऑफ एबीसी वेल्थ, वर्किंग इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री फॉर लास्ट 1.5 decade, सर्विसिंग मोर देन 600 फैमिलीज. पहले आप अपना आपको वन बाय वन स्टेप में जाओ इंट्रो मोड में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाय आई एम धनंजय बांटिया, टॉक अबाउट योर फर्म नेम. आपका फर्म का नाम क्या है. Talk about your experience. So I'm working in this financial industry for last 1 decade, half a decade, last 2 decades. I always use the word decade. Decade will create more authority, sir. Please understand. Never use the word years. Years use नहीं करने का, decade use करने का. I work for this decade. आप 5 साल काम किया, half a decade. अगर आपके पास 400 क्लाइंट है, नेवर यूज द वर्ड क्लाइंट, ऑलवेज यूज द वर्ड फैमिली. फैमिली इज मोर पावरफुल देन क्लाइंट. क्लाइंट इज कमीशन, फैमिली इज मिशन. Yes or no? If you are able to connect to the theme, you can type C in the chat box, because that's the only way for me to understand whether whatever I'm sharing is able to connect with your thought process or not. I'll just request everyone, can we have super fast C in the chat box so that we can take the session ahead? प्रीति जी थैंक यू, भावना जी, सौमित्रा जी थैंक यू सो मच. आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन, सचिन जी, अंकित जी, पीयूष जी, उदय जी, गणेश जी, कविता जी, थैंक यू सो मच. ग्रेट ग्रेट टू सी
सच सुपर एक्टिव रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, राइट? तो एक चीज तो बरोबर है कि जो हम बात कर रहे हैं, यू थिंक दिस इज समथिंग दैट कैन वर्क फॉर यू, इट गिव्स यू अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्लाइंट मेरे से क्यों ले? क्योंकि मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर कोड है, या फिर मेरे पास एक फ्रेंचाइजी है, वॉट एवर इट इज। नहीं सर, वो वजह नहीं होगी सर, यू हैव टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा। इसलिए मैं कहता हूँ, एक थ्योरी है जिसे हम यूज करते हैं, उसे कहते हैं डू यू ऑफर चटनी। आई रन ए कॉर्पोरेट मॉड्यूल कॉल डू यू ऑफर चटनी। अब ये डू यू ऑफर चटनी क्या है? आई गिव यू एग्जांपल। चेताली जी, दो समोसा वाला है एक चटनी देता है, एक बिना चटनी के देता है, लोग ज्यादा किसके पास खाएंगे? जो चटनी देता है, ऑब्वियसली, ये और नो। जी, जो चटनी देते हैं और वो। वो चटनी के लिए चार्ज भी नहीं करता है, लेकिन उसको पता है कि बिना चटनी दिए लोग समोसा मेरे पास खाएंगे भी नहीं, यस और नो। एंड दैट इज व्हाट इज समथिंग दैट एक्स्ट्रा यू ब्रिंग टू द टेबल। क्या हम्म। आपकी कोई पॉडकास्ट आता है? क्या आपकी ने कुछ किताब लिखी है? क्या आपका कुछ कंटेंट है? क्या आप कोई ब्लॉग लिखते हैं? ये सो नो, एनीथिंग दैट पीपल वांट टू रेजोनेट विथ यू। हम्म। आप अपने आप को कैसे एज अ ब्रांड बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू प्लेस, हाउ डू यू प्लेस योरसेल्फ इन व्हाट्सएप स्टेटस? व्हाट डज योर फेसबुक सेज, व्हाट डज गूगल सेज अबाउट यू? आज रात को सभी पार्टिसिपेंट का चेक कीजिएगा अपना नाम, कि आपका नाम लिखिए और लिखिए कि आपके बारे में क्या बोल, गूगल क्या बोलता है आपके बारे में। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट गूगल सेल अबाउट देम। Yes or no? What is your introduction? Whether you are been talked as an advisor or a icon, whatever it is. बता लीजिए, लोगों का अगर स्टेटस देखेंगे ना, स्टेटस में लोग सेल्स करते हैं, स्टेटस में सेल्स नहीं होता है सर। स्टेटस में आपकी ग्रेविटी बढ़ती है सर। द पर्पज ऑफ स्टेटस इज टू इंक्रीज योर ग्रेविटी। स्टेटस का मतलब होता है आपके ओहदा बढ़ाना। हम अपने स्टेटस में 20 तो लगाते हैं, ये फंड आया, ये एनएफओ आया, इसको बेचो, उसको बेचो, मार्केट इतना बड़ा, इसने 100 करोड़ का ये हो जाता, कोई मारुति नहीं लेके तो ऐसा होता तो इतना करोड़पति बन जाता। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपका स्टेटस आपका पूरा खानदान देखता है, आपके घर वाले भी देखते हैं, ससुराल वाले भी देखते हैं, दोस्त भी देखते हैं, और उसको लगता है ये बेचू है। यू योर डिग्निटी फॉल्स, बिकॉज सर आप हर समय बेच रहे हैं। स्टेटस का काम क्या पता है? आपने कोई कोर्स किया, उसका सर्टिफिकेट, कोई फंड मैनेजर से मिले, उसका सर्टिफिकेट, कहीं पर आप कुछ, आपका कोई टीवी शो आया, आपने कुछ आर्टिकल लिखा, आपका कुछ क्रिएशन, दैट इज व्हाट इट इज। आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं सर स्टेटस में, आप खुद को बेचिए। द पर्पस ऑफ स्टेटस इज टू सेल योर सेल्फ। द पर्पस ऑफ स्टेटस इज नॉट टू सेल द प्रोडक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। यू आर बिकॉज यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर बिजनेस। आपका बिजनेस का प्रोडक्ट आप ही हैं सर। आप म्यूचुअल फंड के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, आप ब्रांड एम्बेसडर खुद के हैं। वाई विल पीपल इन्वेस्ट विथ यू, दैट्स इंपॉर्टेंट। आप फेसबुक में क्या डालते हैं? इंपॉर्टेंट, लोग डालते हैं फेसबुक में, इस महीने मैंने 500 एसआईपी बेचा है। मिताली जी, आपने कभी देखा है कि डॉक्टर को लिखते हुए कि इस महीने 500 ग्लाइकोडिन बेचा है? नहीं बेचा ना फिर। एक तो हम बोलते हैं हम फाइनेंशियल डॉक्टर हैं, बाद में हम दिखाते हैं कि हम बेचते हैं। देखो ना, दैट इज चैलेंज। लोग दुबई सिंगापुर घूम के आते हैं, स्टेटस में फेसबुक में डालते हैं इंजॉइंग एट दुबई सिंगापुर, लास्ट में वो कौन सा कोई कंपनी जो अवार्ड देता है, और लिखता है थैंक यू फॉर माई क्लाइंट्स फॉर माई बिजनेस। तब क्लाइंट को क्या लगता है पता है? गाय हमारा है, दूध ये पी रहा है, उसको लगता है हमारा कमीशन से घूम रहा है। सर आपको ये कौन बोलता है डालने के लिए कि मैंने कोई एक कंपनी ने भेजा इधर घूमना? सर आप घूम के आओ, दिक्कत नहीं है। आप दुबई गए, खिड़की खोलिए, लिखिए रिलैक्सिंग एट दुबई, दैट्स इट। व्हाई डू यू शोकेस टू द एंटायर वर्ल्ड कि इस कंपनी का मैंने बेचा था, मैं क्वालिफाई किया था, इसलिए मेरे को भेजा गया इसके बिहाफ में? दैट इज वेयर देयर इज अ डिस्कनेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग दैट ऑरा राइट। यू गो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हाउ डू यू सो, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप अगर वो प्लेस सही नहीं करेंगे ना, चीजें आपसे आएंगी नहीं। कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल। आप आईपी करते हैं कि नहीं? इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और गेटिंग पीपल ऑन बोर्ड। आईपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लोग मुझे क्या कहते हैं, सर मैंने तो कभी किया नहीं है। सर अरे सर, अमिताभ बच्चन साहब ने एक्टिंग करने के पहले कभी एक्टिंग किया ही नहीं था। लता मंगेशकर जी ने गाना गाने के पहले गाना गाया ही नहीं था सर। अब लोग मुझे कहते हैं सर आईपी कैसे किया जाए? मैं कह रहा हूँ आप इंटरनेट में सर्च करो, यूट्यूब में इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, आपको कम से कम 100 वीडियो मिल जाएंगे। 5 वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा इस पैटर्न से आईपी करते हैं। आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, प्राइवेट ऑफिसेज हो गए, शोरूम हो गया, जाके बात कीजिए आई वांट टू डू अ सेशन ऑफ फाइनेंशियल वेलनेस। आप बात कीजिए मनी के ऊपर, लाइफ के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, व्हाई इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट इट। थोड़े बहुत पंचे सीख जाइए कि स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टोरी कैसे बिल्डअप करते हैं। जैसे पैसे को लेके जो डायलॉग बाजी, वो कहते हैं सर पैसा जो है ना, पैसे को लेके आज के टाइम मेरा मानना है कि पैसा सेंटर में, उसके आजू बाजू बाकी सब चल रहा है। सर आप लोग मेरे को एक बात बताइए, जितने जन यहाँ बैठे हैं, आप मेरे को एक बात बताओ, लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम की पैसा? आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम की पैसा? टाइम, ऑब्वियसली, करेक्ट।
और अगर चैताली जी, आप सभी आज मुझे क्या दे रहे हैं? अपना टाइम। टाइम दे रहे हैं। और अगर चैताली आपको ये बोला जाता है कि धनंजय भाई का सेशन है और एक सीट का 1,000 रुपया लगेगा, कितने जन आते हैं? काफी कम। कोई भी नहीं आता, काफी कम नहीं, कोई भी नहीं आता। फिर मैं वही कह रहा हूँ, फिर झूठ क्यों बोला था? कि हमारे साथ दिक्कत क्या पता है, हम टाइम और पैसे को लेकर ना हमेशा अपने आप को सेफ खेलते हैं। मैडम, आज मैं अपना क्या दे रहा हूँ? मैं अपना टाइम ही दे रहा हूँ ना। जी। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? पैसा। नहीं। इसके बदले मुझे पैसा मिला, आई विल गेट माई फीस फॉर दिस, राइट? मैं सेशन ले रहा हूँ तो मुझे पैसा मिलेगा। पैसे, हाँ। तो मैं क्या बेच रहा हूँ? अपना टाइम, क्या कमाने के लिए? पैसा। पैसा। और आदमी बोल रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। सर, लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम नहीं है, लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी टाइम है। और पैसा आपके टाइम में क्वालिटी ऐड कर देता है। हम्म। आज मैं जब जॉब करता हूँ तो महीने भर टाइम देता हूँ ना कंपनी को, तब मेरे को 1 तारीख को सैलरी आता है। व्हाट आई एम गिविंग माई टाइम टू क्रिएट दैट वेल्थ। यस और नो, दैट इज इंपॉर्टेंट। आज के डेट में क्लाइंट को बताओ, क्योंकि ये जो ऑनेस्टी अबाउट मनी है ना, वो वोकल नहीं है इंडिया में। मैडम, आज के डेट में पैसा सेंटर में, उसके आजू बाजू बाकी सब चल रहा है। आज मेरी बेटी कौन से स्कूल में पढ़ती है, कौन डिसाइड करता है? इसमें फाइनेंशियल लाइफ। करेक्ट। ऐसा होगा तो इंटरनेशनल स्कूल, नहीं होगा तो सरकारी स्कूल। आज मैं कौन से ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ, कौन डिसाइड करता है? इसमें फाइनेंशियल लाइफ। पैसा होगा तो रेमंड, नहीं होगा तो बस स्टैंड। आज मैं कौन से घर पे रहता हूँ, डिपेंड्स अपॉन माई फाइनेंशियल लाइफ। पैसा होगा तो भाड़े का मकान, नहीं होगा तो बंगलो। इस बार गर्मी के छुट्टी में मैं कहाँ घूमने गया था, डिपेंड्स अपॉन माई फाइनेंशियल लाइफ। पैसा होगा तो सिंगापुर, नहीं होगा तो सोलापुर। यस और नो। जी। हमारा 1 तारीख वाला माइंड और 25 तारीख वाले माइंड में गैप होता है सर। एक बहुत। तारीख को आप लोग सब पुष्पा बन के घूमते हैं और 25 तारीख को सब शिवल्ली बन जाते हैं। यस और नो, दैट इज द गैप। और आई एम सेइंग इट। आप ये जो कम्युनिकेशन है सर, यू फॉल इन लव विद मनी। पहले एज अ पार्टनर, अगर आपके वाइब्रेशन पैसे वाली है ना सर, वो अट्रैक्ट कर लेगी लोगों को। जब आपका मन में कंफ्यूजन चलेगा ना, लोग अट्रैक्ट, लोग आपके आंखों से पता चलता है कि झूठ बोल रहा है, चमक नहीं है सर। जिसकी चमक नहीं है ना, लोग उससे कनेक्ट नहीं होते हैं सर। मैडम, मैंने इतने लोगों को देखा है। नॉलेज इज कम सेकेंड, फर्स्ट इज दैट ऑरा, दैट कैरिश्मा, दैट एनर्जी, दैट एक्साइटमेंट। नॉलेज इज ओके, मैंने बोला नॉलेज। अब तो आप सभी ने बोला कि 1 साल बाद बढ़ेगा गिरेगा, किसी को नहीं पता है। तो यानी हम सब इक्वल नहीं है उसके में? क्या मैं हूँ सर? अगर चाहे इंडिया के कोई टॉप सीईओ को लेके आ जाइए सामने में, अगर वो उसको पता होता तो फिर वो भी, उसको भी जॉब करने का जरूरत नहीं था, वो खुद ही करोड़पति बन जाते। यस और नो? जी। Reality is there's a process. When we talk about process, there's a high probability people will make money, and that is what you have to, your role is, right? As a distributor, बस वो काम क्लियर कर दो कि मेरा काम है बातें और मुलाकातें। If my work is defined, life become easy. मेरे को क्लाइंट, मेरे को मिलना है, लोग बात नहीं कर रहे हैं। हिताली जी, फॉरगेट अबाउट बिल्डिंग न्यू क्लाइंट्स, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को लोग वैल्यू नहीं दे रहे। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। हम्म। एग्जिस्टिंग क्लाइंट डोंट टेक फॉर ग्रांटेड, बिकॉज इट इज सेड रिटेंशन इज द न्यू एक्विजिशन। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है ना, उसको रोकना भी एक नया एक्विजिशन के बराबर है। अगर आप सर्विस नहीं देंगे, आप वैल्यू नहीं देंगे, कहीं और चला जाएगा, वो चला जाएगा, दे विल गो। यस, बिकॉज सर यू हैव टू कम्युनिकेट। जो आदमी मेरे को साल का 15,000 का ट्रेल देता है, ब्रोकरेज देता है, कमाई देता है, यू डोंट कॉल अप अ सिंगल टाइम, यू डोंट डिजर्व दैट ब्रोकरेज। यस, वी हैव टू बी मोर ऑनेस्ट विथ आवर बिजनेस सर। ये बिजनेस में वो ईमानदारी वाली जो वर्क एथिक्स है ना, उसकी रिक्वायरमेंट है। यू हैव टू क्रिएट एन एक्सेल सीट। मेरे जो टॉप 200 क्लाइंट्स हैं, उसको रेगुलर कम्युनिकेशन जाने का है। यू हैव टू कॉल देम, यू हैव टू मेक देम फील स्पेशल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको लगे yes there is somebody who values my relationship, and that is very important, that's very critical part of our business. क्लाइंट रिस्क पूछता है, धनंजय भाई इसमें रिस्क है, व्हाट इज योर आंसर? हमारा आंसर होता है रिस्क है तो इश्क है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ये करना ही। सर दैट इज नॉट आंसर। उसको बोलो कि सर लेट्स अंडरस्टैंड रिस्क, व्हाट इज रिस्क? सर रिस्क का मतलब बहुत सिंपल है, नुकसान, लॉस, पैसा डूब जाना। यस और नो? आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। रिस्क का रिस्क का आंसर क्या है? वेरी सिंपल, राइट? नुकसान, लॉस, पैसा डूब जाना। द आंसर इज नो। And that is the reason why most of the people don't create wealth. The reason why most of the people don't create wealth is because the definition of risk is wrong. मैडम, रिस्क का मतलब ना ही नुकसान होता है, ना ही लॉस होता है, ना ही पैसा डूब जाना होता है। रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। रास्ते में चलना रिस्क है, यस। रास्ता क्रॉस करना रिस्क है, यस। सीढ़ी चढ़ना रिस्क है, यस। सीढ़ी से उतरना रिस्क है। बाइक चलाना रिस्क है, कार चलाना रिस्क है। यस और नो? 5 साल के बच्चे को बस में स्कूल भेजना रिस्क है। शादी करना, वो भी एक रिस्क है। यस सर, रिस्क इज नॉट लॉस, रिस्क इज अनसर्टनिटी। द रीजन व्हाई पीपल डोंट क्रिएट वेल्थ इज बिकॉज रिस्क का मतलब लॉस समझते हैं। जिसका रिस्क का इज लॉस, नो सर, रिस्क इज अनसर्टनिटी। चेताली जी, मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, खुद का एग्जांपल लेता हूँ।
चैताली जी, मैं आज अभी तमिलनाडु में हूँ, परसों मैं गुजरात में हूँ, वापस तमिलनाडु आऊंगा। मेरा सवाल है, परसों गुजरात जाना रिस्क है कि नहीं है? है। है। और वापस आना भी रिस्क है। जी। तो जब मैं जाएगा गुजरात, ट्रेनिंग देगा तो मुझे पैसा आएगा, यानी हम्म। मुझे पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। जी। अब ऑफिस आते हो, वापस ऑफिस से और घर भी जाते हो, ऑफिस आना भी रिस्क है और वापस जाना भी। आना भी रिस्क है। करने के बाद सैलरी क्रिएट होता है, यानी जी। आपको सैलरी कमाने के भी रिस्क लेना पड़ेगा। जी हाँ। हमारे जो पार्टनर है उनको पे आउट कब मिलता है? जो क्लाइंट के पास जाते हैं, रेगुलर मीट करते हैं। माई क्वेश्चन इज, इफ यू कांट अर्न मनी विदाउट टेकिंग रिस्क, हाउ विल योर मनी अर्न मनी विदाउट टेकिंग रिस्क? जब मैं खुद बिना रिस्क लिए पैसा नहीं कमा सकता हूं, तो मेरा पैसा बिना रिस्क लिए पैसा कैसे कमाएगा? दैट इज द लॉजिक। ये सुनो, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब आप क्लाइंट के पास डालते हैं ना सर, प्लीज अंडरस्टैंड, क्लाइंट को चाहिए एक भरोसा सर। आप किस ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं? So when you talk about specific to Bajaj, the kind of setup they have, Nimesh Chandan, one of the best fund manager in the country. मैडम, जिस तरीके से वो बिहेवियर फाइनेंस को समझते हैं, जिस तरीके से उनकी फिलोसॉफी है, मेगा ट्रेंड स्ट्रैटेजी, यू हैव अ बास्केट ऑफ प्रोडक्ट। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट बजाज एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, इसमें की बेस्ट पार्ट क्या पता है? दे आर प्रोसेस ड्रिवन। उनका पता है कि मैन टू मैन मार्किंग है, हर आदमी का रोल डिफाइंड है। एंड दे बिलीव बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा इज कॉमन विद एवरीवन। इनके इनक्यूब करके फिलोसॉफी है, इनक्यूब इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव एंड बिहेवियर। मैडम, बिहेवियर जो है ना मार्केट को ड्राइव करता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में तो पढ़ना, लेकिन बिहेवियर को कैच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट कैच बिहेवियर, डोंट अंडरस्टैंड फंड मैनेजमेंट, राइट? दैट मेक्स दिस एएमसी वेरी डिफरेंट, दैट मेक्स देम वेरी स्पेशल। तो आपका जो रिस्क का जो समझाने का तरीका है ना, ये पैटर्न काम आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है पता है? इंटेलिजेंस प्लस रिस्क इज वेल्थ क्रिएशन। अगर आप इंटेलिजेंट हैं और आप रिस्क लेंगे तो पैसा बनेगा। दैट्स द फॉर्मूला वेल्थ क्रिएशन। इंटेलिजेंस प्लस रिस्क इज वेल्थ क्रिएशन। द सेकंड फॉर्मूला इज इंटेलिजेंस प्लस इंटेलिजेंस इज फेलियर। अगेन आई रिपीट, इंटेलिजेंस प्लस रिस्क इज वेल्थ क्रिएशन, इंटेलिजेंस प्लस इंटेलिजेंस इज फेलियर। अगर आप यूपी में जाएंगे ना मैडम, चैताली जी, अगर यूपी में जाएंगे तो वहाँ बस के पीछे क्या लिखा होता है पता है? यूपी में बस के पीछे लिखा होता है, गरीब आदमी समझदार होता है। इसको उल्टा कीजिए, समझदार आदमी गरीब होता है। समझदार लोग पैसा नहीं कमाते, क्योंकि वो हमेशा अगर मगर और तो में अटक जाता है। जैसे अगर मेरी चाची के मूछे होते तो मैं से चाचा बुलाता है, ये सर नो, चाची का मूछ नहीं इसलिए उसको चाची बुला रहा है। सर, एज ए इन्वेस्टर जब मैं उससे बात करता हूँ, सर आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग के अलावा ऑप्शन नहीं है। सर पेसिमिस्ट में साउंड वेरी स्मार्ट। सर आज के फोरम में मैं आपको 20 प्रॉब्लम बता सकता हूँ जो वर्ल्ड में चल रहा है और पैसा क्यों नहीं डालना चाहिए। और डालने का एक ही वजह है, क्योंकि सर वजह एक ही है कि क्यों, मेरे को पता है कि आने वाला फ्यूचर अच्छा है। दैट इज द ओनली आंसर। अभी हर जगह तो प्रॉब्लम मैडम, आप न्यूज देखेंगे तो हर जगह प्रॉब्लम है। एवरीवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम, जी। एवरीवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम मैडम। और कभी यहाँ बम फट रहा है, कभी आग लग रहा है, कभी नेपाल में ऐसा हो रहा है, कभी इधर हो रहा है। मैम, द पेसिमिस्ट में लुक्स वेरी इंटेलिजेंट, इट्स द ऑप्टिमिस्ट टू क्रिएट वेल्थ। पेसिमिस्ट लोग ना आपको बहुत बोलते हैं ना कि बहुत साफ दिखेंगे कि नहीं यार कितना ज्ञानी आदमी है, कितना डेटा लेके आया है कि वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है, ट्रम्प काका ने क्या बोला, पुतिन काका ने क्या बोला, उसको ये सब चाहिए। बट प्रॉब्लम इज, दैट इज नॉट वेयर माई प्रॉब्लम सॉल्व। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है जब पैसा बनता है। ये सब, ये पार्ट है मार्केट का। ये मार्केट में न्यूज आएगा, इतना सारा न्यूज चैनल है, इतने सारे एंकर है, कोई ना कुछ, सबका तो अपना घर चलाने का है ना मैडम, हर आदमी को तो अपना घर चलाने का है। लेट देम डू देयर जॉब, लेट अस डू आवर जॉब सर। If we do our job with perfection, if we do our job with clarity, there's a high probability that we connect with people. And when we connect with people with clarity, we have the conviction, right? That is what gives us the foundation to be great in what we do. The business is simple. Let's make it simple. Don't get into complexity. Ensure that people stay invested. People have a vision. People have a goal. There has to be regular monitoring. Age is not a factor that decides. Get into a connection mode. Solve that few objection that the client saves, and ensure that we are driven by the philosophy of the same thing. That is, you have to be driven by a fact called मिलोगे तो मिलेगा और बेचो बोलोगे तो बिकेगा. Yeah. That we do continuously, we become great in the world of sales, right? So this is what I just wanted to share. I just have a few minutes left for Q&A. So Chitali ji, if people have some questions, if you want, we can take some questions. Anything you want to Yes. add to this? So we'll give them 2 minutes, like to type the questions.
So Saumitra ji is saying he's enjoyed the session. It was great. Need more sessions at least once in a month. Thank you so much, Samitra ji. Maybe a participant can put their feedbacks or like whatever you want to add. We will just take it so that we can uh, get into that same expectation that what we want. But my request to everyone is let's get into the understanding of the subject, why it is important, why it is relevant for us to get this insight and clarity. There are multiple things that we can talk on, but we had limitation of time. Thank you so much for this wonderful response. I hope people enjoyed. Okay, wonderful. Sachin ji is saying how to talk to clients already working with other advisors. Wonderful. That's a great question. Sachin ji, I always say people that just like we take opinion for health, like we talk about second opinion for health, why don't we take second opinion for wealth? That's very important. So when I talk to people, I don't say कि उसने जो किया है पहले वाले ने गलत किया है. It is just a new perspective that can be added, sir. So I'm not saying कि what he has done is wrong. Only thing is, can we have one more view on what you do, sir? That's the only thing which suggest. तो हमको ये नहीं बोलने का है कि उसने गलत दिया है. मैंने को उसको ये बोलने का कि सर आई जस्ट वांट टू पुट इन माय थॉट्स टू इट. दैट्स इंपॉर्टेंट. तो कभी किसी को बुरा बोल के अपने आप को अच्छा मत करना. दैट इज वेयर विल गो रॉन्ग. राइट? यस. Correct. Ankita ji wants to know, like, she wants a short idea for direct or regular investment debate in for the clients. मैम देखो, मेरे को एक आईपी में ने क्लाइंट ने मेरे को सवाल पूछा कि धनंजय भाई ये डायरेक्ट और रेगुलर में क्या फर्क होता है. तो चेताली जी, आईपी चल रहा था, 200 लोग थे, खड़े होके बोलता है धनंजय भाई सेशन के बाद में कि धनंजय भाई डायरेक्ट और रेगुलर में क्या फर्क होता है. तो मैंने बोला कि सर आप मेरे को जो खड़े होके सवाल पूछ रहे हैं ना, ये रेगुलर है, और जहाँ सवाल नहीं पूछ सकते वो डायरेक्ट है. दैट इज हाउ सिंपल इट इज. प्लीज अंडरस्टैंड, डायरेक्ट और रेगुलर में हमको compete नहीं करना है, क्लाइंट को क्लैरिटी देनी है. ऐसा कहता हूँ कि क्लाइंट बोलता है धनंजय भाई डायरेक्ट अच्छा है कि रेगुलर अच्छा है, बोथ आर फैंटास्टिक. बोथ आर फैंटास्टिक, दोनों बोलते दोनों अच्छा है सर. सर आपको डायरेक्ट तब करना चाहिए जब ये 3 सवाल का आंसर यस है. फर्स्ट इज, डू यू हैव गुड नॉलेज अबाउट द मार्केट? क्या आपको मार्केट को लेके जानकारी अच्छी है? डू यू अंडरस्टैंड इकोनॉमी? डू यू अंडरस्टैंड फाइनेंस? डू यू अंडरस्टैंड बैलेंस शीट? डू यू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल रेशियोज? इफ यू हैव दैट क्लैरिटी, कैन यू सिलेक्ट द राइट स्कीम फॉर यू बेस्ड ऑन द रिस्क एपिटाइट? गो फॉर डायरेक्ट. सेकेंड इज, डू यू हैव सफिशिएंट टाइम? क्या इतना समय है कि नहीं सर? ऑफिस से आने के बाद, बिजनेस के बाद में अगर आपको लगता है कि मैं आके मनी कंट्रोल करेगा, आई बिलीव इट नॉट वर्क फॉर यू. टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन योर फैमिली एंड रिलेशनशिप. इफ योर टाइम, देन इन्वेस्ट इन दिस. एंड थर्ड इज, डू यू हैव सेल्फ कंट्रोल? सेल्फ कंट्रोल इंपॉर्टेंट है मैम. ये इन्वेस्टिंग इज अबाउट टेम्परामेंट, नॉट अबाउट नॉलेज. लोगों का टेम्परामेंट कंट्रोल नहीं रहता मैडम, नॉलेज तो है. एक न्यूज आता है, लोग भाग जाते हैं. यस और नो? प्रॉब्लम है ये. रेगुलर में आप बताइए व्हाट वैल्यू यू ब्रिंग टू द टेबल सर. तो डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट इज इक्वल टू फंड मैनेजमेंट चार्जेस प्लस एजुकेशन कॉस्ट. क्योंकि आपको डायरेक्ट करने के लिए खुद को एजुकेट करना पड़ेगा ना. और रेगुलर इज फंड मैनेजमेंट चार्जेस प्लस डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्ट. तो जो क्लाइंट बोलते हैं ना हम DIY करेंगे, आई एम श्योर वी नो व्हाट इज DIY. DIY इज डू इट योरसेल्फ. इट इज नॉट डू इट योरसेल्फ, इट इज डिसाइड इट योरसेल्फ. आप इन्वेस्टमेंट में डू नहीं करते हैं, डिसाइड करते हैं. और जब आप DIY करते हैं, बाद में आप बोलेंगे वाई आई डी इज वाई आई डिसाइडेड. दैट्स द रीजन विल कम बैक टू एडवाइजर. दैट्स द गैप. So guys, any more questions? So I don't think और कोई questions है. आपने इतने अच्छे तरीके से explain कर लिया, and we have gotten such wonderful responses also. So thank you Dhananjay. It was really a wonderful session, insightful. आपने जो छोटी छोटी चीजें explain करी in a very nice manner. It was really good. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you so much. Umang ji, are you there? You want to add something? Umang ji. No, thanks, Dhananjay. I think it was very good. Nothing more I can add beyond this. अच्छी चीज के ऊपर और कुछ अच्छा नहीं बोल सकते. So great. Thank you for your support. Okay. Thank you so much. Thank you Umang for arranging and helping with all of this, arranging the call. Yeah, no, thanks, Shetali. Would look forward to connect with you and the team ongoing basis. Yes. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you.